Sorting data. ایک ورک شیٹ میں تقریباً 17 ملین سیلز ہو سکتے ہیں اور ایکسل آپ کو اتنے بڑے ڈیٹا کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت فراہم کرتا ہے۔ اپنی ورک شیٹ میں ڈیٹا کو الفابیٹکلی یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے یا نیومیریکلی چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹے میں ترتیب دینے کو سارٹنگ کہتے ہیں۔ Objectives. اس لیسن میں آپ سیکھ سکیں گے کہ ورک شیٹ میں ڈیٹا کی سارٹنگ کیسے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اسپریڈ شیٹ یا ورک شیٹ کا کانٹینٹ دیکھنے میں آسانی ہو۔ بیسک سارٹنگ۔ ورک شیٹ میں ڈیٹا کی سارٹنگ کرنا ایک عام کام ہے، یعنی یہ کام سب سے زیادہ یا عموماً کیا جاتا ہے۔ ایکسل میں یہ کام ان مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے جن میں Alphabetically sorting. نومیریکل سارٹنگ، Sort by date or time. کسٹمائز سارٹنگ، To sort by cell color, font color or cell icon. ٹو سارٹ ان الفابیٹیکل آرڈر یعنی حروف تہجی کے لحاظ سے ٹیکسٹ کانٹینٹ کی سارٹنگ کرنا۔ ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے سارٹنگ کرنی ہو، مثلاً کسی ورک شیٹ میں لاسٹ نیم کے لحاظ سے سارٹنگ کرنا۔ Ribbon سے ڈیٹا ٹیب پر جائیں اور Sort and Filter گروپ کو تلاش کریں۔ سارٹ اینڈ فلٹر گروپ میں اسینڈنگ کمانڈ جس کے ساتھ A, Z اور ڈاؤن ایرو کا نشان بنا ہو کو سلیکٹ کریں۔ یا Descending کمانڈ جس کے ساتھ ZA اور ڈاؤن ایرو کا نشان بنا ہو کو سلیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں کہ اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا حروف تہجی یا الفابیٹیکلی ترتیب میں آ گیا ہے۔ سارٹنگ کی آپشن آپ کو ہوم ٹیب میں سارٹ اینڈ فلٹر کمانڈ جس کے ساتھ AZ اور کیف یا فنل کا نشان بنا ہو سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ٹو سارٹ ان نومیریکل آرڈر، ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے سارٹنگ کرنی ہو، مثلاً کسی ورک شیٹ میں نومیریکلی لحاظ سے سارٹنگ کرنا۔ ڈیٹا ٹیب سے اسینڈنگ کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ اس کمانڈ سے آپ نیومیریکل ڈیٹا کو اسمالسٹ ٹو لارجسٹ یا لارجسٹ ٹو اسمالسٹ یعنی چھوٹی رقم سے بڑی رقم اور بڑی رقم سے چھوٹی رقم کے لحاظ سے سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا نومیریکلی سارٹ ہو گیا ہے۔ ٹو سارٹ بائی ڈیٹ اور ٹائم، ایک سیل کو سلیکٹ کریں جس کے حساب سے آپ نے ڈیٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ ڈیٹا ٹیب سے اسینڈنگ کمانڈ کو سلیکٹ کریں۔ اس کمانڈ سے آپ ڈیٹس کو نیویسٹ ٹو اولڈسٹ یا اولڈسٹ ٹو نیویسٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اسپریڈ شیٹ میں ڈیٹا ڈیٹ وائز سارٹ ہو گیا ہے۔ کسٹم سارٹنگ، ٹو سارٹ ان دا آرڈر آف یور چوزنگ، آپ اپنے کانٹینٹ کو اپنی مرضی اور ضرورت کے لحاظ سے کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں، مثلاً جیسے کہ ڈیز آف ویک یعنی ہفتے کے دنوں کے لحاظ سے یا ٹی شرٹ کے چھوٹے بڑے سائز کے لحاظ سے بھی سارٹنگ کر سکتے ہیں۔ ڈیٹا ٹیب سے سارٹ کمانڈ پر کلک کریں، آپ کے سامنے سارٹ ڈائلاگ باکس کھل جائے گا۔ اب اس ڈائلاگ باکس سے سارٹ بائی کی ڈراپ ڈاؤن لسٹ میں سے اس کالم کو سلیکٹ کریں جس کے لحاظ سے سارٹنگ کرنی ہو۔ اس ایگزامپل میں ہم ٹی شرٹ سائز کے لحاظ سے سارٹنگ کریں گے۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ سارٹ آن کی آپشن میں ویلیوز کی آپشن سلیکٹڈ ہو۔ اس ڈائلاگ باکس میں سب سے آخری ڈراپ ڈاؤن لسٹ جس پر آرڈر لکھا ہے میں سے کسٹم لسٹ کو منتخب کریں۔ اب ایک اور ڈائلاگ باکس آپ کے سامنے کھل گیا۔ اس میں کسٹم لسٹ کی لسٹ سے نیو لسٹ کو سلیکٹ کریں اور لسٹ انٹریز باکس میں سارٹنگ آپشن کو سلیکٹ کریں۔ مثلاً یہاں ہم ٹی شرٹ سائز فرام اسمالسٹ ٹو لارجسٹ کے لحاظ سے سارٹنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے پر کلک کریں۔ جب آپ اوکے بٹن کلک کر کے
इस डायलॉग बॉक्स को बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि स्प्रेडशीट में डाटा टी शर्ट के छोटे से बड़े साइज के लिहाज से सॉर्ट हो गया है। To sort by cell color, font color और cell icon. Sort dialog box खोलने के लिए Data टैब में मौजूद Sort कमांड पर क्लिक करें। अब इस डायलॉग बॉक्स से सॉर्ट बाय की ड्रॉप डाउन लिस्ट में से इस कॉलम को सिलेक्ट करें जिसके लिहाज से सॉर्टिंग करनी हो। इस एग्जाम्पल में हम टी शर्ट साइज के लिहाज से सॉर्टिंग करेंगे। अब सॉर्ट ऑन लिस्ट में मुंतखब करें कि आपने फॉन्ट कलर, सेल कलर या सेल आइकॉन में से किस ऑप्शन के लिहाज से सॉर्टिंग करनी है। हम यहाँ फॉन्ट कलर को सिलेक्ट करते हैं। ऑर्डर लिस्ट से कलर सिलेक्ट करें और ये फैसला करें कि आया आपने सिलेक्टेड कलर वाले सेल अपनी स्प्रेडशीट में ऊपर दिखाने हैं या स्प्रेडशीट में नीचे दिखाने हैं। ओके बटन को क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स बंद करें और देखें कि आपका डाटा रंग के लिहाज से सॉर्ट या मुरतब हो गया है। फिल्टरिंग डाटा। डाटा की फिल्टरिंग से आप वर्कशीट के कंटेंट को फिल्टर करके नैरो डाउन या कम कर लेते हैं ताकि हमें अपनी ज़रूरत और मर्जी का कंटेंट नजर आए, जबकि बाकी कंटेंट भी वर्कशीट में रहे मगर हाइड या ओझल हो जाए। डाटा फिल्ट्रेशन को समझने के लिए हम यहाँ एक मिसाल लेते हैं जिसमें हम एक टेक्नोलॉजी कंपनी के इक्विपमेंट लॉग का कंटेंट ज़ेरे बहस लाएंगे और हम सिर्फ उन लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स की तफसील दिखाएंगे जो चेकआउट के लिए तैयार हैं। यहाँ हमने ऐसी वर्कशीट की मिसाल ली है जिसमें हर कॉलम की एक हेडर रो है। रिबन में डाटा टैब पर सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएं। यहाँ से फिल्टर कमांड को सिलेक्ट करें। आप देखेंगे कि हर कॉलम के हेडर पर एक ड्रॉप डाउन एरो नजर आना शुरू हो गया है। अब जिस कॉलम के डाटा को फिल्टर करना हो उसके ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। इस मिसाल में हम टाइप वाले कॉलम को फिल्टर करेंगे ताकि हमें मखसूस इक्विपमेंट की टाइप या किस्म के लिहाज से फिल्टर्ड डाटा नजर आए। ये आपके सामने फिल्टर मेन्यू जाहिर हो गया है। अब चूंकि हम सिर्फ लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स की डिटेल देखना चाहते हैं तो हम इस मेन्यू में सिर्फ लैपटॉप और प्रोजेक्टर्स के चेक बॉक्सेस को चेक या क्लिक करेंगे, बाकी इक्विपमेंट्स को अनचेक रहने देंगे। ओके पर क्लिक करें। वर्कशीट का डाटा फिल्टर हो गया है और बाकी इक्विपमेंट की डिटेल या डाटा आर्जी तौर पर हिडन या ओझल हो गया है और सिर्फ लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स का डाटा हमें वर्कशीट पर नजर आ रहा है। फिल्टरिंग की कमांड आपको होम टैब में भी नजर आएगी और ये भी उसी तरह डाटा की फिल्टरिंग करेगी। टू ऐड अनदर फिल्टर, आप एक वक्त में किसी वर्कशीट में एक से ज्यादा फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपका डाटा मजीद फिल्टर होकर नजर आएगा। मसलन अभी पहले हमने जो मिसाल ली इसमें एक और फिल्टर का इजाफा करके देखते हैं। हम इसमें ये फिल्टर ऐड करते हैं कि जो लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स अगस्त के महीने में चेकआउट या बेचे गए थे उनका डाटा हमें नजर आए। अब इस फिल्टर्ड डाटा में चेकआउट के कॉलम के ऊपर जो ड्रॉप डाउन एरो नजर आ रहा है इसको क्लिक करें। आपके सामने फिल्टर मेन्यू आ जाएगा। इस मेन्यू में चूंकि डाटा टाइम किस्म का कंटेंट है इसलिए इसकी ऑप्शंस में आपको डेट एंड टाइम या महीने के लिहाज से ही ऑप्शंस नजर आएंगी। अब इस मेन्यू से सिर्फ अगस्त को चेक रहने दें, बाकी महीनों को अनचेक कर दें। ओके बटन को क्लिक करें। ये देखें एक फिल्टर इस वर्कशीट पर पहले ही अप्लाई था लेकिन अब एक और फिल्टर इस डाटा पर लागू हो गया है। अब आपको सिर्फ अगस्त के महीने में चेकआउट होने वाले लैपटॉप्स और प्रोजेक्टर्स नजर आ रहे हैं। टू क्लियर अ फिल्टर, जिस कॉलम से फिल्टर क्लियर करना हो उसके ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें। यहाँ ऊपर आपको क्लियर फिल्टर फ्रॉम की ऑप्शन नजर आ रही है, इस पर क्लिक करें। ये देखें
इस कॉलम से फिल्टर क्लियर या खत्म हो गया और आपको अब डेटा कुछ मुख्तलिफ तरह से नजर आ रहा है। एडवांस्ड फिल्टरिंग। एक्सेल में आप एडवांस्ड फिल्टरिंग के जरिए किसी खास लफ्ज, खास डेट या खास नंबर के लिहाज से भी फिल्टर करके डाटा को सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप खास किस्म के ब्रांड को फिल्टर करके वर्कशीट में दिखा सकते हैं। डाटा टैब से फिल्टर की कमांड पर क्लिक करें। अब इस कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करें जिसे आप फिल्टर करना चाहते हैं। यहाँ हम एक खास किस्म के लैपटॉप को दिखाना चाहते हैं जिनका ब्रांड नेम सारिस हो। हम यहाँ इस सर्च बॉक्स में सारिस लिखेंगे ताकि हमें सिर्फ सारिस ब्रांड के इक्विपमेंट्स ही नजर आएं। जैसे ही हम सारिस लिखेंगे हमें नीचे सारिस ब्रांड की इक्विपमेंट्स नजर आने लगेंगी। हम सिलेक्ट ऑल सर्च रिजल्ट्स की ऑप्शन को चेक कर देते हैं। ओके बटन प्रेस किया और ये देखें वर्कशीट में सिर्फ सारिस ब्रांड की इक्विपमेंट्स नजर आ रही हैं। यूजिंग एडवांस्ड टेक्स्ट फिल्टर्स। एडवांस्ड टेक्स्ट फिल्टर से आप मजीद स्पेसिफिक सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसे सेल्स को सर्च करना जिनमें वो टेक्स्ट ना हो जो आप सर्च कर रहे हों। हम इस मिसाल में इन सेल्स को हाइड करेंगे जिनमें कैमरा, डिजिटल कैमरा या कैमकॉर्डर के अल्फाज हों। डाटा टैब से फिल्टर कमांड पर जाएं। अब इस कॉलम के ड्रॉप डाउन को क्लिक करें जिसका टेक्स्ट आपने फिल्टर करना हो। इस मिसाल में हम इक्विपमेंट डिटेल वाले कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे क्योंकि इस कॉलम में तमाम इक्विपमेंट्स की डिटेल्स दर्ज हैं। फिल्टर मेन्यू से टेक्स्ट फिल्टर्स को सिलेक्ट करें। ये आपके सामने एडवांस्ड टेक्स्ट फिल्टर मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू से एक फिल्टर सिलेक्ट करें। इस मिसाल में हमने डज नॉट कंटेन फिल्टर को मुंतखब किया है। ये कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इस डायलॉग बॉक्स में दाईं जानिब कैम का लफ्ज लिखें। इसका मतलब ये है कि आपको वो रिजल्ट्स या डाटा दिखाए जिनमें कैम का लफ्ज ना हो, जैसे डिजिकैम प्रिंटर, कैमरा, डिजिटल कैमरा वगैरह। ओके को क्लिक करें और इसके नतीजे में रिजल्ट्स देखें। यूजिंग एडवांस्ड डेट फिल्टर्स। एडवांस्ड डेट फिल्टर से आप एक खास टाइम पीरियड जैसे कि लास्ट ईयर, नेक्स्ट क्वार्टर या 2 तारीखों के दरमियान का अरसा, ऐसे फिल्टर्स आप अपने डाटा पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एक्सेल को आपकी करंट डेट और टाइम का पता होता है। डाटा टैब से फिल्टर कमांड पर जाएं। अब इस कॉलम के ड्रॉप डाउन को क्लिक करें जिसकी डेट आपने फिल्टर करना हो। इस मिसाल में हम चेक्ड आउट वाले कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे क्योंकि इस कॉलम में तमाम इक्विपमेंट्स की चेकआउट डेट्स दर्ज हैं। फिल्टर मेन्यू से डेट फिल्टर्स को सिलेक्ट करें। ये आपके सामने एडवांस डेट फिल्टर मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू से एक फिल्टर सिलेक्ट करें। इस मिसाल में हमने दिस वीक फिल्टर को मुंतखब किया है। आपकी वर्कशीट का कंटेंट डेट वाइज फिल्टर हो गया है। यूजिंग एडवांस्ड नंबर फिल्टर्स। इस फिल्टर ऑप्शन से आप अपने डाटा को मुख्तलिफ तरीकों से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक एग्जाम्स ग्रेड की वर्कशीट पर आप हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर्स का डाटा देख सकते हैं वगैरह। यहाँ हम इस मिसाल में इक्विपमेंट आईडी के लिहाज से डाटा को फिल्टर करेंगे। डाटा टैब से फिल्टर कमांड पर जाएं। अब इस कॉलम के ड्रॉप डाउन को क्लिक करें जिसके नंबर्स आपने फिल्टर करना हों। इस मिसाल में हम आईडी नंबर वाले कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे क्योंकि इस कॉलम में तमाम इक्विपमेंट के आईडी नंबर्स दर्ज हैं। फिल्टर मेन्यू से नंबर फिल्टर्स को सिलेक्ट करें। ये आपके सामने एडवांस नंबर फिल्टर मेन्यू आ गया है। इस मेन्यू से एक फिल्टर सिलेक्ट करें। इस मिसाल में हमने बिटवीन को मुंतखब किया है
ताकि हम जो आईडी नंबर इस फिल्टर में देंगे, बिटवीन को सिलेक्ट करते ही ये कस्टम ऑटो फिल्टर डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में दाईं जानिब हम आईडी नंबर्स की एक रेंज देंगे कि हमें इसी रेंज के आईडी नंबर्स वाले इक्विपमेंट की डिटेल दिखाए। मसलन हम यहाँ कहते हैं कि हम आईडी नंबर 3000 से बड़े और आईडी नंबर 4000 से कम वाले इक्विपमेंट की तफसील दिखाए। ओके बटन क्लिक करें और ये देखें डाटा इन नंबर्स के लिहाज से फिल्टर हो गया है जो आपने स्पेसिफाई किए थे। फॉर्मेटिंग टेबल्स। जब आप अपनी स्प्रेडशीट में डाटा या इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं तो उसके बाद आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग से न सिर्फ आपकी स्प्रेडशीट की शक्ल और सूरत तब्दील होती है, बल्कि देखने में बेहतर लगती है और इसका इस्तेमाल भी आसान हो जाता है। इससे पेशतर हम मुख्तलिफ फॉर्मेटिंग जैसे कि बोल्ड, इटैलिक्स वगैरह के बारे में सीख चुके हैं। लेकिन अब आप टेबल फॉर्मेटिंग और पहले से मुहैया करदा टेबल स्टाइल्स के बारे में सीखेंगे। टेबल्स फॉर्मेटिंग का तरीक़ाकार। सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट में मौजूद डाटा या इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट या हाईलाइट करें। इसके बाद आप होम टैब में मौजूद फॉर्मेट एज टेबल के आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं। इस आइकन पर क्लिक करने या आइकन पर मौजूद एरो हेड पर क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल गया है। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के टेबल स्टाइल्स देख रहे हैं। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू को रंगों के लिहाज से 3 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसा कि लाइट, मीडियम, डार्क। आप हस्ब ज़रूरत कोई सा भी स्टाइल मुंतखब कर सकते हैं। जो ही आप कोई भी स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा जिसमें वो आपसे सेल रेंज पूछेगा। अगर आपने अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट या हाईलाइट किया हुआ है तो इसमें वही सेल रेंज जाहिर होगी, आपको किसी किस्म की तब्दीली की जरूरत नहीं। और अगर आपने पहले अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को हाईलाइट नहीं किया हुआ तो आपको लाजिमन सेल रेंज देना होगी। इसके अलावा आपको एक चेक बॉक्स नजर आ रहा है जिसके साथ लिखा हुआ है माई टेबल हैज हेडर्स। इसका मतलब है कि आपके डाटा कॉलम्स का टाइटल या हेडिंग है या नहीं। अगर टाइटल या हेडिंग मौजूद हैं तो इस ऑप्शन को चेक रहने दें। आपके इस्तेमाल शुदा टाइटल या हेडिंग पर फिल्टर की ऑप्शन लग जाएगी। और अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपके टाइटल या हेडिंग की बजाय कॉलम 1, कॉलम 2 जाहिर होंगे और उन पर फिल्टर लग जाएंगे। आपके कॉलम्स के हर टाइटल या हेडिंग के साथ एक एरो हेड जाहिर होता है जिसके जरिए आपको ड्रॉप डाउन की सहूलत मुहैया की गई है और इसका इस्तेमाल करते हुए आप अपनी स्प्रेडशीट को फिल्टर या सॉर्ट कर सकते हैं। मॉडिफाइंग टेबल्स टू ऐड रोज एंड कॉलम्स। अगर आप अपने टेबल की रोज या कॉलम्स में इजाफा करना चाहते हैं तो अपने टेबल के किसी भी सेल को सेलेक्ट करें। डिजाइन टैब खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा। इसमें से रीसाइज टेबल की ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा जो आपसे न्यू सेल रेंज को सिलेक्ट करने की ऑप्शन देगा। आइए इससे पेशतर कि हम अपने टेबल की रोज या कॉलम्स में इजाफा करें, हम सेल रेंज के बारे में तफसील से जान लें। लिखी गई सेल रेंज का मतलब ये है। ये हमेशा बराबर या इक्वल साइन के निशान से शुरू होगा। इक्वल साइन के बाद डॉलर साइन आएगा। इसके बाद कॉलम का नाम। इसके बाद फिर डॉलर साइन आएगा। इसके बाद रो नंबर आएगा। इसके बाद कॉलन लिखा जाता है। इसके बाद टेबल के आखिरी कॉलम का नाम और रो नंबर लिखा जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि हमने पहले लिखा था। अब आप सेल रेंज देकर अपने टेबल की रोज और कॉलम्स में इजाफा कर सकते हैं। टू चेंज द टेबल स्टाइल, अपने टेबल में से किसी भी सेल को सिलेक्ट करें। डिजाइन टैब में
ٹیبل سٹائلز کی آپشن نظر آ رہی ہے. ان میں کوئی بھی سٹائل منتخب کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایرو ہیڈ کو سلیکٹ کر کے مزید سٹائلز کو دیکھا جا سکتا ہے. یوزنگ ٹیمپلیٹس. ایکسل 2010 میں پہلے سے بنے ہوئے ورک شیٹ ٹیمپلیٹس ہوتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے کام کو آسان بناتے ہوئے بہت سا وقت بچا سکتے ہیں. ٹیمپلیٹ ایک بائی ڈیفالٹ کلر کمبینیشن کے ساتھ مختلف افیکٹس، فونٹس اور سیٹنگز کا مجموعہ ہوتا ہے. To create a new workbook using a template. فائل ٹیب سے بیک اسٹیج ویو میں جائیں. نیو کو سلیکٹ کریں. یہ پہلے سے دستیاب ٹیمپلیٹس کا پین سامنے کھل گیا ہے. یہاں سے سیمپل ٹیمپلیٹس کو سلیکٹ کریں. سیمپل ٹیمپلیٹس کے تھم نیل ویو آپ کو نظر آ رہی ہیں اور ہر تھم نیل کا بڑا ویو آپ کو اسکرین کے دائیں جانب نظر آ رہا ہے. اپنی مرضی کا ٹیمپلیٹ منتخب کریں. کریٹ کا بٹن پریس کریں. ایک نئی ورک بک اسی ٹیمپلیٹ ڈیزائن کی بنی ہوئی آپ کے سامنے کھل جائے گی جسے آپ نے ابھی ٹیمپلیٹ مینیو سے سلیکٹ کیا تھا. بائی ڈیفالٹ آپ کو ایکسل میں یہ ٹیمپلیٹس ملیں گے. آپ ان ٹیمپلیٹس کے علاوہ مائکروسافٹ آفس سے مزید ٹیمپلیٹس بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. بلنگ اسٹیٹمنٹ، بلڈ پریشر، بلڈ پریشر ٹریکر، ایکسپینس رپورٹ، لون امورٹائزیشن، پرسنل منتھلی بجٹ، سیلز رپورٹ، ٹائم کارڈ. چارٹس. کریٹ این آرگنائزیشنل چارٹ. چارٹ ایک ایسا ٹول ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ڈیٹا کو گرافکلی دکھا سکتے ہیں. ایکسل میں چارٹس کے ذریعے آپ اپنے آڈینس کو نمبرز اور فگرز کے پوشیدہ مطلب اور ان میں موازنہ کروا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا چارٹس کے مختلف اقسام کے بارے میں بتاتے ہیں. کالم چارٹ، پائی چارٹ، لائن چارٹ، بار چارٹ، ایریا چارٹ. سرفیس چارٹ. یہ تمام قسم کے چارٹ آپ کو ایکسل میں میسر ہیں اور انہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں. اب چارٹ کے مختلف حصوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. ٹائٹل آف دا چارٹ یعنی چارٹ کا ٹائٹل. ورٹیکل ایکسس یا عمودی محور، اس کو عام طور پر وائی ایکسس کا نام بھی دیا جاتا ہے. ڈیٹا سیریز، یہ حصہ آپ کے چارٹ میں موجود ڈیٹا پوائنٹ کو ظاہر کرتا ہے. لیجنڈ، اس میں آپ اپنے چارٹ میں دیے گئے ڈیٹا کے بارے میں کچھ اہم معلومات لکھتے ہیں اور یہ عام طور پر افقی محور یا ایکس ایکسس کے بارے میں ہوتا ہے کہ کون سا ڈیٹا کس کیٹیگری میں آتا ہے اور چارٹ میں کیا اسکیل استعمال کیا گیا ہے وغیرہ. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ورک شیٹ میں چارٹ کس طرح کریٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب پر کلک کرتے ہیں. انسرٹ کے ٹیب میں ہمیں چارٹس کا گروپ نظر آ رہا ہے. اس میں ہمیں چارٹس کی آپشنز نظر آ رہی ہیں. ان میں کالم، لائن، پائی، بار، ایریا، اسکیٹر اور ادر چارٹس کی آپشنز نظر آ رہی ہیں. جب آپ ان چارٹس میں سے کسی پر بھی کلک کریں تو ایک اور مینیو کھل جاتا ہے جس میں چارٹ کی سلیکٹ آپشن سے متعلق مختلف سٹائل نظر آ رہی ہیں. ان سٹائل آپشنز میں سے اپنی ضرورت کے مطابق کوئی سا سٹائل سلیکٹ کریں. آپ کا مطلوبہ چارٹ انسرٹ ہو گیا ہے. کریٹ ڈفرنٹ کائنڈس آف چارٹس، بار چارٹ، پائی چارٹ ایکسیٹرا. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ورک شیٹ میں مختلف چارٹس مثلاً بار چارٹ، پائی چارٹ وغیرہ کس طرح کریٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم انسرٹ کے ٹیب میں سے چارٹ کی کمانڈ پر کلک کر کے ایک چارٹ بناتے ہیں. اور اگر ہم اس چارٹ کی ٹائپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں. رائٹ کلک کرنے سے آپ کے سامنے ایک ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا ہے. اس ڈائلاگ باکس میں سے ہم چارٹ ٹائپ کو چینج کر سکتے ہیں. ایسا کرنے سے ہمارے سامنے مختلف چارٹس ٹائپ آ گئی ہیں. مثلاً کالم، بار،
लाइन, पाई चार्ट वगैरह। आप इसमें से जो चाहें वो टाइप सिलेक्ट करें और ओके के बटन पर क्लिक कर दें। मसलन हम इसमें से पाई चार्ट पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, पाई चार्ट पर क्लिक करने से बार चार्ट तब्दील होकर पाई चार्ट हो गया है। इस तरह हम मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स वर्कशीट में बना सकते हैं। Reviewing and sharing workbooks. अगर आपसे कोई कहे कि आपने वर्कशीट को प्रूफ रीड करना है और अगर आपके पास वर्कशीट की हार्ड कॉपी है तो आप शायद रेड पेन के साथ सेल्स को हाईलाइट करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स को मार्क करें और साइड मार्जिन में कमेंट्स दें। ये तमाम काम एक्सेल के फीचर ट्रैक चेंजेस एंड कमेंट्स के जरिए किया जा सकता है। Objectives. इस लेसन में आप सीखेंगे कि ट्रैक चेंजेस कैसे करते हैं, कमेंट्स कैसे ऐड करते हैं, एक वर्कशीट की दो मुख्तलिफ वर्जन्स का मुआजना या कंपैरिजन कैसे करते हैं, स्पेलिंग्स कैसे चेक करते हैं, वर्कशीट की फाइनल वर्जन कैसे शेयर करते हैं। About track changes. जब आप ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो वर्कशीट में की जाने वाली चेंजेस एक खास बॉर्डर के साथ हाईलाइट होती जाती हैं। और जब आप हाइलाइटेड सेल पर माउस हावर करते हैं तो इस सेल पर की जाने वाली चेंजेस की तफसील डिस्प्ले हो जाती है। इसका फायदा ये है कि जब कोई दूसरा आपकी वर्कशीट को पढ़ता है तो उसको आसानी से वर्कशीट में की जाने वाली चेंजेस का पता चल जाता है। टू टर्न ऑन ट्रैक चेंजेस, रिव्यू टैब में जाएं। चेंजेस ग्रुप में ट्रैक चेंज को क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हाईलाइट चेंजेस को सिलेक्ट करें। ये आपके सामने हाईलाइट चेंजेस का डायलॉग बॉक्स आ गया है। ट्रैक चेंजेस व्हाइल एडिटिंग के चेक बॉक्स को चेक करें। इस बात की तस्दीक करें कि हाईलाइट चेंजेस ऑन स्क्रीन का चेक बॉक्स चेक्ड हो। इससे आप जो चेंजेस वर्कशीट में करते जाएंगे वो हाईलाइट होती जाएंगी। ओके को क्लिक करें। अब ट्रैकिंग ऑन है। आप नोट करें कि जो भी चेंजेस इस वर्कशीट में की जा रही हैं वो एक मखसूस बॉर्डर के साथ हाईलाइट होती जा रही हैं। टू टर्न ऑफ ट्रैक चेंजेस, रिव्यू टैब में जाएं। चेंजेस ग्रुप में ट्रैक चेंज को क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से हाईलाइट चेंजेस को सिलेक्ट करें। ट्रैक चेंजेस व्हाइल एडिटिंग के चेक बॉक्स को अनचेक करें। ओके बटन क्लिक करें और इस तरह आपकी वर्कशीट की ट्रैकिंग स्टॉप हो जाएगी। टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस, रिव्यू टैब से ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक्सेप्ट, रिजेक्ट चेंजेस को सिलेक्ट करें। अब निशानदही करें कि आपने किन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है और किन को रिजेक्ट करना है। इस मिसाल में हम उन तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट करेंगे जिन्हें अभी तक हमने रिव्यू नहीं किया। ओके पर क्लिक करें। अब एक्सेप्ट और रिजेक्ट चेंजेस डायलॉग बॉक्स नजर आ रहा है। वर्कशीट में जो भी चेंजेस की हैं उन्हें यहाँ से आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते जाएं। एडिंग एंड डिलीटिंग कमेंट्स, वर्कशीट में कमेंट्स ऐड करने का मकसद वर्कशीट के डाटा या कंटेंट के बारे में अपनी आरा देना है। ये कमेंट आप अपनी याद दहानी के लिए भी लगाते हैं। कमेंट्स का एक और इस्तेमाल ये भी है कि इनके जरिए आप डेटा की इंफॉर्मेशन भी दे सकते हैं। टू ऐड अ कमेंट, जिस सेल के साथ कमेंट का इजाफा करना हो उसको सिलेक्ट करें। रिव्यू टैब से न्यू कमेंट की कमांड को क्लिक करें। ये देखें, इस सिलेक्टेड सेल के साथ एक इजाफी टेक्स्ट बॉक्स जिसे कमेंट बॉक्स भी कहते हैं नजर आ रहा है। इस कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट टाइप करें। ये देखें, इस सेल के अपर राइट कॉर्नर पर एक सुर्ख रंग का इंडिकेटर नजर आ रहा है। इस इंडिकेटर का मतलब होता है कि रीडर को ये पता चल सके कि इस सेल में कमेंट ऐड किया गया है। इस सेल पर माउस हावर करके आप कमेंट देख सकते हैं। टू
edit a comment. जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें. रिव्यू टैब से एडिट कमेंट कमांड पर क्लिक करें. अब आप कमेंट को एडिट कर सकते हैं. टू शो और हाइड कमेंट्स, जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें. रिव्यू टैब से शो हाइड कमेंट कमांड पर क्लिक करें. टू डिलीट अ कमेंट, जिस सेल के साथ कमेंट हो उसको सिलेक्ट करें. रिव्यू टैब में कमेंट्स ग्रुप में डिलीट की कमांड पर क्लिक करें. ये देखें, कमेंट डिलीट हो गया है. फाइनलाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग योर वर्कबुक. जब आप एक वर्कबुक किसी को रीड करने या किसी को सेंड करने लगें तो उससे पहले एक बार फाइनल अपनी वर्कशीट को देख लें. एक्सेल में आपके पास सहूलत है कि आप स्पेलिंग्स एरर को दुरुस्त और अपनी वर्कबुक की इंफॉर्मेशन को दूसरों से हाइड कर सकते हैं. टू चेक स्पेलिंग. जिन सेल्स के स्पेलिंग्स चेक करने हो उनको सिलेक्ट करें. रिव्यू टैब से स्पेलिंग कमांड को क्लिक करें. स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इस डायलॉग बॉक्स से आप स्पेलिंग एरर को रिव्यू और एडिट यानी ठीक कर सकते हैं. टू यूज द डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर, बैकस्टेज व्यू से इन्फो को क्लिक करें. चेक फॉर इशू बटन को क्लिक करें. एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाएगा. इंस्पेक्ट डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें. एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. एंटर ले जाते ही उसकी शक्ल बॉक्स में उन चेक बॉक्सेस को चेक करें जिनका आपने मुआयना करना है. इंस्पेक्ट बटन क्लिक करें. डॉक्यूमेंट या वर्कबुक इंस्पेक्ट होने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहां आप इंस्पेक्ट रिजल्ट को रिव्यू कर सकते हैं. प्रोटेक्टिंग योर वर्कबुक. एक्सेल में बाय डिफॉल्ट आपकी वर्कबुक कोई भी एक्सेस करके उसमें डाटा को कॉपी, एडिट और डिलीट कर सकता है जब तक कि आप इस वर्कबुक को प्रोटेक्ट या महफूज न कर लें. अब हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कैसे करना है. टू प्रोटेक्ट योर वर्कबुक, फाइल टैब से बैकस्टेज व्यू में जाएं. इन्फो पैन से प्रोटेक्ट वर्कबुक की कमांड को क्लिक करें. अब यहाँ से अपनी मर्जी की ऑप्शन को सिलेक्ट करें. यहाँ आपके पास ये ऑप्शंस हैं. ऑर्गेस फाइनल. आपकी वर्कबुक फाइनल हो जाएगी लेकिन रीड ओनली होगी, यानी इसमें डाटा एडिट नहीं होगा. एनक्रिप्ट विद पासवर्ड. वर्कबुक पर पासवर्ड लगाने के लिए प्रोटेक्ट करंट शीट. आपकी मौजूदा वर्कशीट जिसे आपने खोला हो सिर्फ वही प्रोटेक्ट होगी. प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर. इससे आपकी वर्कबुक का स्ट्रक्चर या तंजीमी ढांचा महफूज होगा, यानी आपकी वर्कबुक में वर्कशीट्स वगैरह का इजाफा नहीं हो सकेगा. रिस्ट्रिक्ट परमिशन बाय पीपल. इस ऑप्शन से आप बाकी लोगों को ये सहूलत देते हैं कि वो इस वर्कबुक में किए गए अपने काम को प्रोटेक्ट कर सकें. ऐड अ डिजिटल सिग्नेचर. इस ऑप्शन से आप अपनी वर्कबुक को डिजिटली महफूज कर लेते हैं, यानी जैसे डिजिटल सिग्नेचर की पाबंदी लगाकर आप वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. अगर कोई ऐसी वर्कबुक को ओपन करेगा तो पहले थंब इम्प्रेशन या डिजिटल सिग्नेचर देगा तो ये वर्कबुक ओपन होगी. कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके ओके का बटन क्लिक करें. एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इसको भी ओके करके कंफर्म करें. यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग. इंट्रोडक्शन. फर्ज करें कि आपकी स्प्रेडशीट में हजारों रोज हैं. इतनी ज्यादा रोज में देखते हुए आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कि डाटा को एनालाइज किया जाए. अगर आपकी स्प्रेडशीट में सेल्स का डाटा है और आप चाहते हैं कि एक मखसूस प्रोडक्ट या कीमत वाला डाटा नुमाया तौर पर नजर आए, या आपकी स्प्रेडशीट में अकाउंटिंग या स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको आप नुमाया करके देखना चाहते हैं, तो आपको
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करना होगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस फॉर्मेटिंग को कंडीशनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाली क्वेरीज का इस्तेमाल कंडीशनल होता है। जैसे आप एक वैल्यू को बुनियाद बनाकर उससे बड़ी वैल्यू या उससे छोटी वैल्यू या उसके बराबर वैल्यू के लिहाज से फॉर्मेटिंग करते हैं। तरीका-ए-कार, प्रोसेस। सबसे पहले अपनी स्प्रेडशीट को सिलेक्ट या हाईलाइट करें। उसके बाद होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के आइकन या आइकन पर मौजूद एरो हेड पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके सामने आएगा। उसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस मौजूद होंगी। हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स, न्यू रूल, क्लियर रूल्स। मैनेज रूल्स। आइए एक-एक करके इन तमाम ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स में मजीद सब मेन्यू है जिसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस मौजूद हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, between, इक्वल टू, text that contains, a date occurring, duplicate values, more rules। greater than। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें पहली ऑप्शन ये है, फॉर्मेट सेल्स that are greater than। इसमें एक वैल्यू लिखी हुई नजर आएगी जिसको आप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं। ये वैल्यू जो आप अपनी मर्जी के मुताबिक लिखेंगे, इससे बड़ी तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी। इसके साथ ही एक ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है। एरो हेड पर प्रेस करने से तमाम मुहैया करदा ऑप्शंस नजर आएंगी, यानी आप हाईलाइट के लिए कौन सा रंग इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई स्टाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं। यूं आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से बड़ी तमाम वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग के साथ हाईलाइट हो जाएंगी। लेस देन। ये ऑप्शन भी ग्रेटर देन की तरह काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये आपकी मुंतखब करदा वैल्यू से छोटी वैल्यूज को हाईलाइट करती है। बिटवीन। इसमें आपको दो वैल्यूज का इंतखाब करना होता है, छोटी और बड़ी, और वो तमाम वैल्यूज जो इन दो वैल्यूज के दरमियान होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं। इक्वल टू। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने पर आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा जिसमें आपको एक वैल्यू लिखनी होगी। इस वैल्यू के बराबर वो तमाम वैल्यूज हाईलाइट हो जाएंगी जो आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद हैं। टेक्स्ट दैट कॉन्टेन्स। जैसा कि इस ऑप्शन का नाम है, इससे साफ जाहिर होता है कि उन सेल्स को हाईलाइट करो जिसमें आपका लिखा हुआ लफ्ज या अल्फाज हैं। अ डेट अकरिंग। इस ऑप्शन के जरिए आप एक मखसूस दिन, हफ्ते, महीने के लिहाज से अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज। इस ऑप्शन के जरिए आप अपनी तमाम स्प्रेडशीट में मौजूद डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं। और इसी ऑप्शन में आपको यूनिक वैल्यूज के लिहाज से भी अपनी स्प्रेडशीट को हाईलाइट कर सकते हैं। टॉप बॉटम रूल्स। इस ऑप्शन को क्लिक करने से एक सब मेन्यू जाहिर होता है जिसमें मुंदरजा झैल ऑप्शंस होती हैं। टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। आइए सबसे पहले टॉप 10 आइटम्स के बारे में देखते हैं। टॉप 10 आइटम्स। इस ऑप्शन को क्लिक करने से आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होगा। इस पर लिखा होगा, फॉर्मेट सेल्स दैट रैंक्स इन द टॉप। पहले ड्रॉप डाउन में आपको डिफॉल्ट वैल्यू लिखी नजर आ रही होगी जो कि 10 है। क्योंकि इस ऑप्शन का नाम ही टॉप 10 आइटम्स है, इसलिए आपको ये 10 की वैल्यू नजर आ रही है। लेकिन आप इसको अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। इसके बाद वाले ड्रॉप डाउन में आप अपनी मर्जी का रंग मुंतखब कर सकते हैं। इस ऑप्शन के इस्तेमाल से आपकी स्प्रेडशीट में मौजूद टॉप 10 वैल्यूज आपके मुंतखब करदा रंग से हाईलाइट हो जाएंगी।
और आप बआसानी टॉप 10 वैल्यूज को देख सकते हैं। टॉप 10%। ये ऑप्शन भी पिछली ऑप्शन की तरह है, लेकिन इसके इस्तेमाल से शरह फीसद के एतबार से वैल्यूज को हाईलाइट किया जाता है। इसको सिलेक्ट करने पर भी आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है, जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू 10 ही है, लेकिन ये 10% है। इसको भी आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। बॉटम 10 आइटम्स। ये ऑप्शन टॉप 10 आइटम्स के बरक्स ऑप्शन है, यानी इसमें सबसे छोटी वैल्यू 10 को हाईलाइट किया जाता है। इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करने से आपके सामने डायलॉग बॉक्स जाहिर होता है, जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10 ही होती है, जिसे आप अपनी मर्जी से तब्दील कर सकते हैं। ये ऑप्शन टॉप 10% की मुखालिफ ऑप्शन है, यानी इसको सेलेक्ट करने पर 10% के लिहाज से छोटी वैल्यूज जाहिर होंगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग प्रीसेट्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत से प्रीसेट्स हैं। इनमें डाटा बार्स और कलर स्केल्स और आइकॉन सेट्स शामिल हैं। इनके इस्तेमाल से आप स्प्रेडशीट में मौजूद वैल्यूज को असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में मुख्तलिफ रंगों और ग्रेडियंट और आइकन्स के साथ जाहिर कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सेकंड लास्ट ऑप्शन क्लियर रूल्स है, जिसके जरिए आप अपनी स्प्रेडशीट पर अप्लाई तमाम रूल्स को साफ या खत्म कर सकते हैं। क्रिएटिंग पिवट टेबल्स। जब हम स्प्रेडशीट में बहुत ज़्यादा डेटा एंटर कर लेते हैं तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना और उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना निस्बतन मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन में स्प्रेडशीट के एक बहुत कारआमद फीचर पिवट टेबल को इस्तेमाल किया जाता है। हमने इस स्प्रेडशीट में एक कंपनी की तमाम प्रोडक्ट्स की सेल्स के आदाद शुमार को एंटर किया है। अगर हम इस डेटा से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि हर प्रोडक्ट की रीजन वाइज टोटल सेल के बारे में मालूम करें, या हम ये जानना चाहते हो कि कंपनी की कौन सी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा सेल हुई है, या फिर ये मालूम करना हो कि किस सेल्स पर्सन ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई है, इस किस्म के तमाम सवालों के जवाब हम पिवट टेबल से हासिल कर सकते हैं। ये एक ऐसा इंटरैक्टिव टेबल है जो डाटा को ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट, ऑर्गेनाइज और समराइज करता है। इस वक्त जो वर्कशीट आप देख रही हैं, इसके पहले कॉलम में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के नाम एंटर किए हैं। इसी वर्कशीट के दूसरे कॉलम में हमने इन एम्प्लॉइज के डिपार्टमेंट्स एंटर किए हैं। अब अगर हमें ये मालूम करना हो कि कौन सा डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉइज को टोटल कितना पे कर रहा है, तो इसका फार्मूला बहुत लेंथी और मुश्किल हो जाएगा। इस मुश्किल से बचने के लिए हम इस डाटा का पिवट टेबल बनाते हैं। आप जो एम्प्लॉइज की सैलरी शीट इस वक्त देख रहे हैं, हम इसका पिवट टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में से पिवट टेबल को क्लिक करते हैं। अब हमें क्रिएट पिवट टेबल करने का मेन्यू दिखाई दे रहा है। इसमें हमें ये बताना है कि जिस डेटा का पिवट क्रिएट करना है, इसको कहां से ऐड करना है, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, किसी एक्सटर्नल सोर्स से या फिर वर्कशीट से डेटा को कलेक्ट करना है। इस स्टेप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पहले से ही सिलेक्टेड है और हमने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के डाटा को इस्तेमाल करना है। पिवट टेबल के दूसरे स्टेप में हमने ये बताना है कि इस पिवट टेबल की रिपोर्ट को इसी वर्कशीट में दिखाना है या किसी और वर्कशीट में डिस्प्ले करवाना है, यानी हम लोकेशन के बारे में बताते हैं। हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमने न्यू वर्कशीट में क्रिएट करना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में पिवट टेबल को क्रिएट करना है। हम यहाँ से न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं और फिर पिवट टेबल को क्रिएट करने के लिए ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। लेकिन ये क्या, हमें पिवट टेबल की बजाय ये बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। यहाँ हमने ये बताना है कि पिवट टेबल के रो कॉलम और डाटा फील्ड में
कौन से कॉलम को एंटर करना है। इसके अलावा हमें स्क्रीन के दाएं जानिब एक विंडो में जो कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए थे उनकी हेडिंग भी नजर आ रही हैं। हमने इनको चेक बॉक्स से चेक करके पिवट टेबल में ऐड करना है। इस एग्जाम्पल में हमने डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को कैलकुलेट करना है, इसलिए फील्ड लिस्ट में हम डिपार्टमेंट को चेक करेंगे। ये देखें, हमने वर्कशीट में एक पिवट टेबल बना लिया। हमारे पिवट टेबल में एक ही कॉलम नजर आ रहा है, लेकिन हम इस पिवट टेबल में एक से ज्यादा कॉलम्स को भी शो करवा सकते हैं। इस मकसद के लिए हमें कॉलम लेबल्स को ऐड करना होगा। पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में से एक फील्ड को चेक करेंगे। ये देखें, पिवट टेबल में एक और कॉलम नजर आना शुरू हो गया। यूजिंग ए पिवट चार्ट। पिवट चार्ट एक रेगुलर चार्ट की तरह ही होता है, लेकिन ये सिर्फ पिवट टेबल से ही डेटा दिखाता है। बाकी चार्ट्स की तरह आप पिवट चार्ट की टाइप, लेआउट और स्टाइल तब्दील कर सकते हैं। इस मिसाल में हम एक पिवट चार्ट शो करेंगे ताकि हमें हर सेल्स रीजन के ट्रेंड या रुझान का पता चल सके। पिवट टेबल से एक कॉलम मुंतखब करें। ऑप्शंस टैब से पिवट चार्ट को सिलेक्ट करें। इंसर्ट चार्ट के डायलॉग बॉक्स से अपनी पसंद और जरूरत के मुताबिक चार्ट टाइप सिलेक्ट करें और ओके क्लिक करें। वर्कशीट में एक पिवट चार्ट बन गया है। आप इसको ड्रैग करके कहीं भी मूव कर सकते हैं। आप अपने पिवट टेबल में जो भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली पिवट चार्ट में भी हो जाएंगी और इस तरह पिवट चार्ट भी अपडेट हो जाएगा।